Okay, so what is cloud computing? So we discussed that cloud computing is actually on-demand availability of different computing resources. Okay, and these computing resources are provided to you online, means with by internet. Okay, so you can have a cloud which consists of different network devices and which consist of different computing resources. Resources could be storage resources, network resources, these different kinds of resources you can have. Okay. Then we also say the services which are offered by cloud computing. What are the services that are offered by cloud computing? SaaS, storage, software as a service. Then we have storage as a service. We have infrastructure as a service. We have platform as a service. These are the different services which are offered by cloud. What is software as a service? Software as a service means typically accessed by users using web browser. Okay. We use web browser to offer software as a service. See, we have Google App Engine, which is an example of software as a service. Google App Engine provides you different services. What are the different services provided by Google Cloud? It provides you storage to store your data at the cloud. It provides a proper backup for your data. You can restore your data from this backup copy. Okay, and then you have Google Meet to take to for remote education. You can use the Google Meet software. Then you have Google Maps functionality. Google Map provide you to follow the directions if you do not know the directions for reaching from to a destination from a source. So Google Maps drive you through the directions around the globe, around the map. Okay. Then we these are the different. Google Docs is again a functionality. Google Forms is a functionality. See, Google Forms is a functionality through which you can conduct an online test of students, making the remote education possible, a remote test system possible. Okay, so these are some examples of Google. These are some examples of the services or the facilities provided by Google Cloud or Google App Engine. Okay. Then you have email system. Email is also an example of software as a service. What is email? See, you use Gmail account to access email, to send email or receive email. Again, Netflix is an example of software as a service because it provides on-demand licensed videos to watch based on subscription model. Okay, these are all examples of SAS. Then we have ERP, Enterprise Resource Planning System, implemented in different companies or different organizations. They are also an example of software as a service. Then we have game software like very different game softwares. They are also example of software as a service. You can just download these games or ERP system from the net. They are available as a Play Store. They are available as a different apps on Play Store, and you can just download these apps on your mobiles and use them. You do not need to install these applications. They are pre-installed on the Play Store, and you can just download from Play Store these apps and use them for your purpose. So the different applications are available free of cost for you on the Play Store, so you can use them. Then you have management information system, customer relationship management system, content management system, global information system. These are all examples of your SAS. Okay, so SAS provides you mail services, social networking sites. They are also example of SAS. Okay, you do not need to install any software on your device to access these their services. These are available on internet. Then you have document management, business services like ERP. Okay. Then you have another service like PAS, platform as a service. What is platform as a service? It allows programmer to create, test, run, and deploy web applications. Example: Google App Engine. Then PS provides programming languages like Perl, Java, PHP, application frameworks like Drupal, Joomla, WordPress, databases like SQL.
Mango database, ठीक है, other tools. These are all provided by platform as a service. It generally deals with web applications, and all the web applications, they include different programming languages of web. As I told you, Java, PHP, Perl. These are all web-based programming languages. Then you have databases that are supported by these web applications. Okay, these are all examples of these PAs. Then we discussed the storage as a service. That is also a service offered by cloud. Storage, see, now you don't have to require external hard drives to take backup copy of your data, or you don't need very heavy hard disk to just install in your system. If you want a heavy storage for your purpose, for your use, then you can just request to the Google Cloud, and it offers you a big resource of storage, big amount of storage to you, and you can just utilize that resource for your own purpose, even for taking backup and for restoring your data later on. So there is a one central cloud server which provides storage to different physical machines, and the physical machines you can consider like dumb machines. They don't have their hard disk, and they share the hard disk of the cloud server, central cloud server. Okay, so that is the meaning of storage as a service. And you can pay to the cloud server on subscription basis, means for per usage of the storage or any other service, you have to pay to the cloud server. This is called pay per use model uh, of the cloud computing. Okay, so then you have infrastructure as a service. In infrastructure as a service, you provide computing resources like CPU, hard disk. See, central processing unit. Suppose you have a cloud server that have CPU, a very heavy processor, and it allows different dumb machines. Dumb machines means which are without CPU, and it wants to support CPU or provide CPU to these dumb machines on a shared basis. Then it can do so with the help of time sharing operating system. It will install a virtual machineware VMware on the cloud server, and will make available different resources, different computing resources like computing power or central CPU to different dumb machines on time shared basis. And since these resources are being shared on time sharing basis, each dumb machine will get an impression as if they are owning a own dedicated resource or own dedicated machine for their disposal. But the fact is they do not have any dedicated resource. They do not have any CPU, but they are utilizing the CPU, a share of CPU of the central cloud machine. Okay, central cloud server. That is the actuality. Then we have storage of in infrastructure as a service, different network resources, network infrastructure like routers, switches, bridges, hubs. These are also provided by different cloud servers in infrastructure as a service. And these also act as a load balancer. ये load balancer की तरह भी काम करता है, because it shares the load of other servers. सपोज आपका जीमेल सर्वर बैठ जाता है कुछ समय के लिए, जो दूसरे बैकअप सर्वर्स हैं, सेकेंडरी सर्वर्स हैं, वो उसका टास्क शेयर करेंगे फॉर दैट टाइम, और वो उसको कंटिन्यूस फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते रहेंगे, और आपका सिस्टम फेल नहीं होगा. तो ऐसा नहीं है कि आपका प्राइमरी सर्वर अगर फेल हो गया तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा. जो दूसरे सर्वर हैं, सेकेंडरी सर्वर हैं, वो उसका लोड शेयर कर लेंगे और आपकी सर्विस कंटिन्यू आपको देते रहेंगे. So this is the meaning of load balancing in infrastructure as a service. इसके अलावा we also see sir the characteristics of cloud computing or the advantages of cloud computing. इसमें क्या क्या एडवांटेजेस की बताएंगे आप जरा, क्या क्या एडवांटेज या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की थी क्लाउड कंप्यूटिंग की. सी हाई अवेलेबिलिटी एंड हाई रिलायबिलिटी. अवेलेबिलिटी का मतलब है कि हमारे क्लाउड सर्विसेज सारी अवेलेबल रहेंगी फॉर द टाइम बिंग. रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी, रिलायबल हैं ये सारे सोर्सेज. क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए रिलायबल सोर्स. स्केलेबिलिटी, आप कितने भी रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, कितने भी रिसोर्सेज ऐड कर सकते हैं. ठीक है. इसमें डिवाइस और लोकेशन इंडिपेंडेंस है. डिवाइस लोकेशन इंडिपेंडेंस का मतलब है आप डिपेंड नहीं कर रहे किसी एक डिवाइस पे बैठ के ही आपको इसको एक्सेस करना है. आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट किसी पे भी एक्सेस कर सकते हैं. लोकेशन का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो लोकेशन इंडिपेंडेंस भी है. मेंटेनेंस बहुत कम है.
कॉस्ट बहुत कम है, सर्विसेज आपको हमेशा मिलती रहेंगी ऑन पेपर यूजेज मॉडल, कोई हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी है, डेटा बैकअप रिस्टोर ले सकते हैं आप, अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेबिलिटी है, मोबिलिटी है, मोबाइल पे किसी भी स्मार्टफोन पे यूज कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज को, ये इसके एडवांटेज है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट cloud e-commerce. Now anybody will tell me what is e-commerce? What is e-commerce? This is online buying and selling of products. It's called e-commerce. And what is cloud e-commerce? Let us discuss in detail what is cloud e-commerce and how this e-commerce facility is achieved in full manner. Okay. The first thing in cloud commerce, cloud commerce is e-commerce is of three types: B2B, B2C, C2C. Mainly three types of e-commerce we have. In B2B e-commerce, what is B2B e-commerce? The two parties are the business parties. In B2B e-commerce, the two parties are business parties. Means if suppose two parties have to conduct a business between them, they can make use of B2B e-commerce. For example, suppose you have a manufacturing unit and it wants to distribute its product to different distributors, then it can make use of B2B e-commerce to distribute its product to different distributors. And for this, they will make use of EDI, electronic data interchange, which is a common set of policies or term and policy document on which the two business parties agree upon, and they use this document to just share some information between each other and to let make this B2B e-commerce possible. तो आप दोनों बिजनेस पार्टीज के बीच में ई कॉमर्स कर सकते हैं. They will just settle on certain policies, certain rules and regulations, certain terms and conditions, and then they can make the business or the trading between them possible. इसका एग्जांपल जैसे ebay.com आपकी वेबसाइट है, आपने देखा होगा ebay.com पे आप क्या क्या कर सकते हैं. ebay.com एक साइट है जिसके थ्रू आप सपोज किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने, किसी बिजनेस पार्टी ने एक टेंडर निकाला और it has filed that tender on the website to different companies, और हर कंपनी ने अपनी अपनी उस पर कोटेशन लिखी और अपनी बिड की उस पर. तो अब वो जो कंपनी है, सेंट्रल कंपनी है जिसने वो बिड दी थी, वो आपने यानी कि प्रोजेक्ट दिया था कोटेशन के लिए, तो वो सेलेक्ट करेगी उसमें से कि कौन सी कंपनी ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट को कम से कम कॉस्ट में और कम से कम बजट में और अच्छे से अच्छे मटेरियल के साथ कंप्लीट करेगी. तो उस कंपनी को जिसकी कोटेशन सबसे कम होगी और सबसे कम बजट में जो सबसे अच्छा मटेरियल यूज करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रही होगी, वो प्रोजेक्ट कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो सकता है, तो वो जो इसको कम कंडीशन में और अच्छे मटेरियल के साथ कंप्लीट करेगी उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा. तो B2B ई कॉमर्स के थ्रू ये सब चीजें पॉसिबल है. ठीक है, तो B2B कॉमर्स इसमें हेल्प करता है. और ये कई इंडस्ट्री में, जैसे रिटेल इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, बिजनेस इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री में यूज हो सकता है. जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर है और कई सारे रिटेलर्स हैं, तो उनके बीच में भी B2B कॉमर्स सेट हो सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह से बिजनेस करने को ही हम B2B कॉमर्स बोलते हैं. ebay.com जैसा एग्जाम्पल बताया मैंने, इसी तरह की एक ऑक्शन की साइट है जिसमें बिड की साइट है, इसमें आप बिडिंग कर सकते हैं और कोई भी इसमें कोटेशन अपनी फाइल करके, और कोई भी कंपनी है वो बिड किसी को भी कोटेशन दे सकती है, प्रोजेक्ट असाइन कर सकती है, टेंडर दे सकती है प्रोजेक्ट का. फिर दूसरा इसी में आता है B2C ई कॉमर्स, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है आजकल. व्हाट इज B2C ई कॉमर्स? इट इज बिजनेस टू कंज्यूमर. इसमें एक बिजनेस पार्टी है और डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं. जैसे जो भी आजकल ई कॉमर्स कर रहे हैं आप, ज्यादातर जो ई कॉमर्स हो रहा है वो B2C ई कॉमर्स ही है. जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन पे जो भी ई कॉमर्स करते हैं, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट वगैरह पे या अमेजन पे आप प्रोडक्ट कस्टमाइज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं. उसमें सपोज आपकी ग्रोसरी आइटम्स, फर्नीचर आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फैशन आइटम्स, ये डिफरेंट आइटम्स आपके रहते हैं और आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उन्हें सेलेक्ट करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार्ट में प्लेस कर सकते हैं. और इलेक्ट्रॉनिक कार्ट में प्लेस करने के बाद देन यू कैन प्लेस एन ऑर्डर, और उस ऑर्डर को आप किसी भी मोड में पे कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. ठीक है, इसके थ्रू आप पे कर सकते हैं. तो डिफरेंट मीडिया हैं उसके लिए, और उसको जो भी डिस्काउंट ऑफर करना होता है वो भी उसको बता देता है कि दीज आर द डिफरेंट स्कीम्स अंडर विच यू कैन अप्लाई फॉर ऑफरिंग अ डिस्काउंट.
तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं ई कॉमर्स को। और सबसे बड़ा फायदा क्या है B2C कॉमर्स का कि इट हैज रिवोल्यूशनराइज्ड द टुडेज वे इन विच दिस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इज कंडक्टेड। इसने बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। जैसे सपोज करिए आप एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक टीवी परचेज करने जा रहे हैं, और उस टीवी परचेज करने के लिए आप जाएंगे उस पे फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे डालेंगे अपनी स्पेसिफिकेशन की, ये स्पेसिफिकेशन का यानी कि इस मॉडल का, इस मैन्युफैक्चरर का, इतनी प्राइस रेंज का, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ इस ब्रांड का मुझे टीवी लेना है। तो आप उसमें जब डालेंगे अपना फिल्टर करेगा वो आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग, तो आपको सारे अवेलेबल प्रोडक्ट्स दिखा देगा। आप उनके कॉस्ट देख सकते हैं कितना मैक्सिमम डिस्काउंट आप उस पर अवेल कर सकते हैं, और फिर उनको दूसरी साइट पे जो उसी तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उनसे कंपेयर कर सकते हैं। और इतना सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करने के बाद जब आप शॉपकीपर के पास जाएंगे या टीवी डीलर के पास जाएंगे, तो यू कैन गेट द प्रोडक्ट विद वेरी गुड प्राइस और वेरी ऑप्टिमम प्राइस। आपको जब उससे काफी बार्गेन कर पाएंगे जब आप इतने डेटाबेस के साथ, इतनी इंफॉर्मेशन के साथ जाएंगे। पहले तो क्या होता था, जब हम मार्केट जाते थे तो हमें एक्चुअल प्राइस पता ही नहीं होता था कि क्या प्राइस चल रहा है या मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम आने की वजह से ये चीजें पॉसिबल हो गई हैं। आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप जैसे कोई क्लॉथ भी परचेज करने जा रहे हैं तो उसका इस समय मार्केट में कॉस्ट क्या चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको बार्गेन कर सकते हैं शॉपकीपर के पास जाके। तो इतना सब आपके पास बैकअप है कि अब आपको अपना एक्सपीरियंस या अपने जैसे एल्डर पर्सन से आप एक राय लेते थे कि इस समय क्या चल रहा है प्राइस, या अखबार अगर आप पढ़ते हैं लगातार तो उससे थोड़ा सा आइडिया मिलता था। लेकिन अब आप ऑनलाइन सिस्टम की वजह से पूरा R&D कर सकते हैं, पूरा रिसर्च कर सकते हैं कि हाँ ये इसके प्राइसेस हैं और ये अलग अलग साइट्स हैं जो इस तरह से इस पे ऑफर कर रही हैं, और अगर इस ब्रांड से मैं इस ब्रांड पे स्विच करता हूँ तो मुझे ये डिफरेंसेस आएंगे। कंपेयर कर सकते हैं सबके प्राइसेस, और उसके बाद आप अगर ऑफलाइन मोड में भी जाएंगे तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा इस ऑनलाइन प्रोसेस से, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपको एक ऐसे प्राइस की प्रोडक्ट ले सकते हैं जो कि आपके अकॉर्डिंग अच्छा प्राइस होगा और एक ऑप्टिमम प्राइस होगा। तो ये सिस्टम आजकल इसीलिए पॉसिबल हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और फिर इसमें भी कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अगर आप और ज्यादा बहुत ज्यादा अगर इंटरनेट यूज करते हैं और आप रेगुलर ऑनलाइन यूजर हैं, तो आपको ये पता भी चल जाता है रेगुलर यूज करते समय कि फ्लिपकार्ट इस तरह की प्रोडक्ट्स को ज्यादा अच्छा ऑफर करता है, या अमेजन इस तरह के ऑफर्स को ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है। जैसे कि बुक्स के मामले में अमेजन ज्यादा बेटर है बुक्स लेने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के केस में फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन मार्केटिंग करना ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह की चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ जब आप इंटरनेट यूज करते रहते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। तो उस केस में जब ये चीजें ये सब आइडिया भी हो जाता है आपको, तो आपका ई कॉमर्स आप उतना ही अच्छे तरीके से यूज भी कर सकते हैं। तो B2C ई कॉमर्स में हम यही करते हैं, जो जनरल आजकल जो यूज हो रहा है मेनली पार्ट जो है ई कॉमर्स का, वो B2C ई कॉमर्स ही है, जिसको कि हम फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील इन डिफरेंट साइट्स के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, थर्ड ई कॉमर्स है C2C ई कॉमर्स, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यानी कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, सीधे दो कंज्यूमर हैं वही दोनों इन्वॉल्व है, कोई थर्ड इंटरमीडियरी नहीं है। इसका बेनिफिट क्या है कंज्यूमर टू कंज्यूमर? तो आप जरा सोचिए, पहले आप किसी बाइक को सेल करने जाते थे तो क्या करते थे? बाइक को सेल करने के लिए आपको एक पर्सन होता था, जैसे कोई ऑटोमोबाइल का पर्सन, ऑटोमोबाइल वाला है, या कोई टेक्नीशियन, या आपका मैकेनिक है, उसके पास आप जाते थे। वो बताता, उससे आप पूछते थे कोई कस्टमर है तुम्हारी जानकारी में जिसको कि इस बाइक को खरीद सकता है, तो वो बताता था। अब उसमें भी क्या है, वो जो अमाउंट सेटअप कराता था उसमें उसका कमीशन भी होता था, तो आपसे ज्यादा पैसे लेता था, आपको ज्यादा मतलब आपसे ज्यादा में डील करा के कम पैसे आपको ऑफर करता था, कहीं कुछ पार्ट वो कमीशन के तौर पर लेता था। और जिससे लेता था, उससे जिसको परचेज करवाता था उससे भी कुछ कमीशन उसका सेट रहता था, उससे भी कमीशन लेता था। इससे आप वो दोनों तरफ से कमीशन लेता था, बायर की, सेलर की तरफ से भी और परचेजर की तरफ से भी। तो उसको तो काफी बेनिफिट होता था, लेकिन आपको एज अ सेलर उतना फायदा जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। और जिसको जो बेच रहा है, जिसको लेना है, खरीदना है, परचेजर जो है, उसको भी ज्यादा पे करना पड़ता था। तो दोनों ही पार्टीज को थोड़ा सा नुकसान रहता था इस इंटरमीडिएरी को पैसे देने की वजह से। अब क्या है, C2C कॉमर्स के थ्रू अब किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंज्यूमर से कॉन्टेक्ट करिए। आप अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स, जैसे मैन्युफैक्चरर ईयर, जैसे बाइक के केस में मैन्युफैक्चर ईयर ऑफ द बाइक, कितने साल का मॉडल है, क्या उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, कितने सीसी का इंजन है, ठीक है, क्या प्राइस रेंज आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे, तो ये सब आप डाल देते हैं। अब जो भी कंज्यूमर आपसे इंटरेस्टेड होगा वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करेगा, तो आपसे पूछेगा कि आप इस स्पेसिफिकेशन पे देना चाहते हैं, क्या आप इतने, वो उसे अगर बार्गेन करना होगा तो डायरेक्ट आप ही से करेगा, किसी थर्ड पर्सन से उसे सेटल करने की डील इश्यू जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट डील आपसे ही सेटल होगी एज अ सेलर।
तो ये दोनों पार्टीज को फायदा रहता था, उसे अब किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें भी C2C कॉमर्स में दो साइट हैं, OLX.com और Quicker.com। इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। OLX.com क्या है? OLX.com ऐसी साइट है जो कि पेड मेंबरशिप देती है। अब पेड मेंबरशिप का क्या मतलब है? पेड मेंबरशिप का मतलब है वो थोड़ा सा पैसा आपसे लेगी, लेकिन उस केस में वो इस बात की गारंटी लेगी कि वो आपसे कंज्यूमर कांटेक्ट करेगा ही करेगा। यानी कि 1 साल के लिए आपसे गारंटी लेगी कि 1 साल में आपसे कंज्यूमर कांटेक्ट करेंगे, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वो बात आगे प्रोसीड कराने में, पूरा वो चीजें चैनल सेट करने में हेल्प करेंगे। और इसमें भी अगर इसमें उनकी फिर लायबिलिटी रहेगी उस साइट की कि वो कस्टमर अरेंज करके देगी। यानी कि आपके पास कॉल आएगी कस्टमर की जो कि इंटरेस्टेड होगा आपसे वो प्रोडक्ट खरीदने में। जबकि Quicker.com है, उसमें फ्री मेंबरशिप है, कोई मतलब मेंबरशिप नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। इसमें अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड होगा तो आपसे बात करेगा, नहीं होगा तो नहीं भी करेगा। ठीक है, तो उसमें उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। इस तरह की ये दो साइट्स रहती हैं, जिसमें कि पेड मेंबरशिप और अनपेड की केस में ये दो अलग तरह की साइट है, जिसमें OLX और क्विकर इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, और भी डिफरेंट साइट्स हैं जो कि इस पे काम करती हैं C2C कॉमर्स पे, तो इसको हम C2C ई कॉमर्स कहते हैं। तो ई कॉमर्स में हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें जैसे हम जब भी पेमेंट करते हैं तो एक पेमेंट गेटवे भी रहता है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट से कोई चीज खरीदी तो आप देखते होंगे कि उसमें बीच में पेमेंट गेटवे भी रहता है। जैसे SBI का कार्ड लिया या दूसरा कोई कार्ड ले लिया तो उसका एक पेमेंट गेटवे होता है जो दोनों पार्टीज के बीच में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो सेटल कराता है। ठीक है, और आप जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने सपोज कोई टीवी परचेज किया तो टीवी में उस कंपनी को तो आप पे करते ही हैं, साथ में इंस्टॉलेशन डेमो टीम वो अलग रहती है, वो अलग से आके आपके टीवी इंस्टॉल वगैरह करके जाएगी। उसके लिए अलग से थोड़ा बहुत चार्ज होगा तो वो लेगी आपसे। तो वो अलग अलग टीम उसमें जुड़ी रहती है। डिलीवरी टीम अलग होगी जो डिलीवरी उसके लिए करेगी आपके लिए, और देखिए आप चेक करेंगे डिलीवरी करते समय कि ये ऑथेंटिक है, जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया था वही मुझे मिला है नहीं। तो ये सारी चीजें, सारे इश्यूज, सारी टीम्स मिलके सब कोलैबोरेट होके तब उसको चीज को पॉसिबल करते हैं। जिसमें पेमेंट गेटवे भी एक पार्ट होता है कि आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं। कई बार आपको ट्रस्ट नहीं होता कि आपको लगता है कि अगर मैंने पेमेंट पहले ही कर दी और बाई चांस बाद में डिफेक्टिव पीस आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ किसी आप सेटिस्फाई नहीं हुए प्रोडक्ट में, तो आप कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप जब जिस समय डिलीवरी होगी उस समय कैश पे करना चाहते हैं तो कैश पे कर सकते हैं। हालांकि इस कंपनीज क्या होती हैं कि इस केस में कि यूजर कैश ऑन डिलीवरी ना करके सीधे डायरेक्ट पहले ही पेमेंट कर दे, उसके लिए कुछ ऑफर भी करती हैं कि जैसे अगर आपके कार्ड इस कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, HDFC कार्ड के थ्रू या एक्सिस बैंक कार्ड के थ्रू, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। या SBI के क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं तो फर्स्ट परचेज पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, इंस्टेंट डिस्काउंट। इस तरह की ऑफरिंग्स भी करती रहती हैं जिससे कि आपको उसके लिए मोटिवेट करने के लिए आप उसमें उसको कर सकें। ठीक है, ये रहता है, ये पूरा क्लाउड ई कॉमर्स का सिस्टम है, ये डिफरेंट ई कॉमर्स सिस्टम है। और देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये ई कॉमर्स सिस्टम का जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है ई कॉमर्स का, ये एक एक्सटेंडेबल कंसेप्ट है। ये सिर्फ B2B B2C और C2C तक लिमिटेड नहीं है। इसमें ऐसा भी हो सकता है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट है, उसने अपनी एक जॉब के लिए अपनी अपनी जॉब के लिए पोस्टिंग ऑफर की। ठीक है, जैसे Naukri.com है, Monster.com, ये डिफरेंट जॉब पोर्टल्स हैं जो डिफरेंट प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में कंपनी जॉब्स ऑफर करते हैं। तो आपको क्या करना होता है, एज अ यूजर उस पर रिज्यूम अपना अपलोड करना होता है। तो ये Naukri.com और Monster.com जो साइट्स हैं वो वहां से रिज्यूम देखती हैं आपका, और उसके अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट करती हैं अगर उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही होती है। तो ये भी एक तरह का ई कॉमर्स का एक्सटेंशन है, जिसको आप G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ई कॉमर्स के अंदर रख सकते हैं। जिसमें कि आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट को अगर बहुत डिफरेंट जॉब ऑफरिंग्स या दूसरी तरह की जॉब ऑफरिंग्स आपके सिटीजन को देनी है, तो इस तरीके से वो दे सकती है। तो ये भी इसी का एक एक्सटेंशन है ई कॉमर्स का। तो ई कॉमर्स एक लिमिटेड कंसेप्ट नहीं है बल्कि एक एक्सटेंसिबल कंसेप्ट है, और जितने तरीके से आप अलग तरीके से भी अगर सोच सकते हैं कोई इसका एक्सटेंशन, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है आपका ई कॉमर्स का। इट हैज डिफरेंट एक्सटेंशन। ठीक है, और जैसे आप आजकल देख भी रहे हैं फ्रेशर वर्ल्ड और ये डिफरेंट साइट्स हैं जिन पे कि आप अपना रिज्यूम अपलोड कर देते हैं, तो ये डिफरेंट जॉब ऑफरिंग्स ऑफर करते हैं। बहुत सी साइट ऐसी भी होती हैं जो आपको ट्यूटोरियल्स ऑफर करती हैं, मॉक टेस्ट ऑफर करती हैं। ठीक है, तो ये सब इसी का एग्जांपल है। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ई कॉमर्स। और फिर बाकी आपने बहुत सी साइट्स ऐसी भी देखी हैं, जैसे ITR फाइल करने की साइट्स हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की साइट्स हैं। तो इन साइट्स को भी आप एक ई कॉमर्स, ये भी एक एक्सटेंशन है ई कॉमर्स का। ये भी एक तरह का ई कॉमर्स है जिसके थ्रू आप ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और उसकी रिसीप्ट भी जनरेट करके आपके पास आ जाती है।
तुरंत ऑनलाइन रिसीप्ट जनरेट हो जाती है और तुरंत आप इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि यू हैव इंडीड फाइल्ड अ रिटर्न, तो उसका स्टेटस भी तुरंत ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि योर आईटीआर हैज बीन प्रोसेस्ड और इट हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड, तो और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन। ये सारी फैसिलिटीज आपके ई कॉमर्स के आने की वजह से ही पॉसिबल हुई है। तो ये क्लाउड ई कॉमर्स में क्लाउड, क्योंकि इसमें क्लाउड इन्वॉल्व है, ऑन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाउड ऑन और इंटरनेट इन्वॉल्व है, तो इसमें ये इसको इसलिए इजी बन गया है ये चीजें। और ये क्लाउड ई कॉमर्स पॉसिबल इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि वी हैव डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट मीडियाज विच हैव मेड पॉसिबल दिस ई कॉमर्स प्रैक्टिकली। ठीक है, इसको इसने ई कॉमर्स को प्रैक्टिकली पॉसिबल बना दिया है। ठीक है। अच्छा, इस पे अटैक्स भी हो सकते हैं। जैसे ई कॉमर्स है तो इस पे कई बार ऐसे चांसेस भी रहते हैं कि किसी ने सपोज, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आपने पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर की डिटेल्स डाली है, मान लीजिए वो क्रेडिट कार्ड नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब क्या है, अगर आपने ऐसा इनवैलिड कार्ड डाल दिया तो आपने कहा इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि हर क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन के लिए मर्चेंट वेबसाइट को पे करना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी ने इनवैलिड कार्ड नंबर ऐसी डालता गया, तो मर्चेंट को तो जबरदस्ती उनके लिए पे करना पड़ जाएगा उनके ऑथराइजेशन के लिए। तो फिर क्या सॉल्यूशन है? तो इसके लिए इसमें सॉल्यूशन ये निकाला गया है कि आपको जो सिस्टम है, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन.com, ये हर क्रेडिट कार्ड नंबर को ऑथराइज करने से पहले उस पर एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम यूज करती हैं, जिससे कि उसके नंबर को ये चेक किया जाता है कि नंबर वैलिड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर है भी या नहीं। और ये एल्गोरिथम जनरली इस तरह की होती हैं कि ये उस क्रेडिट कार्ड नंबर से ही उसकी इनमें एक ऐसा सिस्टम होता है कि इस तरह की क्रिप्टोग्राफी यूज होती है कि पहली 9 डिजिट से 10वीं डिजिट जनरेट हो जाती है। तो ये क्या करती हैं, ये एल्गोरिथम उस पर वर्कआउट करती हैं, जो भी आप क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर देते हैं, और उनकी पहली 9 डिजिट से उस क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम के थ्रू 10वीं डिजिट जनरेट करने की कोशिश करती हैं। तो अगर वो 10वीं डिजिट जनरेट हो जाती है फर्स्ट 9 डिजिट से, जो क्रेडिट कार्ड नंबर का फर्स्ट 9 डिजिट दी गई है, तो उससे ये प्रूव हो जाता है कि ये नंबर अब ऑथेंटिक है, कि थर्ड डिजिट जनरेट हो रही है क्रिप्टोग्राफी लगा के। तो वो ये श्योर हो जाता है कि हाँ, ये क्रेडिट कार्ड नंबर वैलिड है, अब इसको आगे प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन अगर वो नंबर वैलिड नहीं है तो उसको वहीं की वहीं डिस्कार्ड कर दिया जाता है, बिना उसको प्रोसेस किए, कि क्योंकि एक बार आपने प्रोसेस किया तो फिर आपको मर्चेंट को उसका पे करना पड़ता है पेमेंट गेटवे साइट्स को। तो इसलिए वो पहले ही उसको वैलिडेट करके देखती है कि ये क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर वैलिड है या नहीं। और अगर वो उन्हें वैलिड लगता है, वैलिड मिलता है उनको, तभी वो आगे उसको प्रोसीड करती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सिस्टम भी बहुत सी वेबसाइट पे यूज होते हैं। तो हर क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर जो आप देते हैं वेबसाइट्स पे, उनको ऑथराइज करने के लिए पहले मर्चेंट को भी पे करना पड़ता है। ठीक है, और इसीलिए वो इस तरह की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करते हैं अपने उस पे फ्लिपकार्ट या अमेजन जो साइट्स हैं, जिससे कि ये वैलिडेट किया जा सके कि ये वैलिड नंबर वैलिड है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ये आपको ई कॉमर्स और इसका इंट्रोडक्शन, किस तरह से ई कॉमर्स हम यूज करते हैं, क्या इसके क्या रोल है ई कॉमर्स का, और आजकल ई कॉमर्स जो हम यूज कर रहे हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे इसको क्लाउड की हेल्प से इसको आसान बना दिया गया है, और क्या क्या इसके वेरिएंट्स हैं, किस किस तरीके से ये आजकल यूज हो रहा है, और किस कैसे इसने आजकल जो ई कॉमर्स है उसको इजी बना दिया और फ्लेक्सिबल बना दिया है। ठीक है, तो इसने काफी हद तक रिवोल्यूशनाइज कर दिया है आज के ई कॉमर्स एक्टिविटीज को। जैसे हम पहले कॉमर्स करते थे, तो उससे ये कहीं ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें हर कोई पर्सन इससे बेनिफिट ले सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ समय पहले अपने डॉटर के लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेने गया। तो मुझे एक गिफ्ट लेना था। तो अक्सर क्या होता है, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वहां पे जाके कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या प्रोडक्ट लूं। और फिर हो सकता है कंफ्यूज होने के बाद वो जिस तरह का भी प्राइस आपको देता है, आप उसमें फंस भी जाते हैं कि अच्छा ये प्राइस, वो कहता है कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट रहेगा। तो कई बार आप दुकानदार की बातों में भी आके कि उस समय समझ में नहीं आता करें क्या, कई बार गलत यू एंड अप टेकिंग ए रॉन्ग प्रोडक्ट, और प्राइस भी उसका ज्यादा ज्यादा दे आते हैं। तो मैं अभी क्या हुआ कि एक मुझे टॉय लेना था, तो मैंने पहले ऑनलाइन सर्च किया कि किस तरह के टॉय इस इतने साल के बच्चे के लिए अवेलेबल है। तो उतने साल के बच्चे के लिए मैंने देखा कि ये सारे टॉयज अवेलेबल है। फिर मैंने देखा कि कौन सा टॉय देना डिसेंट रहेगा बच्चे को, जिससे कि उसे थोड़ा सा उसके लिए सीखने को भी मिले और उसके पर्पज का कुछ उससे फायदा भी हो, उसको कुछ अच्छा भी है उसको देने के लिए। ये नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया और फालतू में एक ऐसा टॉय दे दिया जिसके लिए वो कुछ दिन यूज करेगा फिर फेंक देगा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने काफी सर्च किया, उसमें सर्च किया तो कुछ प्रोडक्ट कस्टमाइज करके मैंने उसमें ई कार्ट में रख लिए। मैंने कहा हाँ ये प्रोडक्ट सही रहेंगे।
फिर मैं उस शॉपकीपर के पास वहां पे गया। मैंने कहा कि इस तरह के, पहले मैंने उससे कहा कि अच्छा इसके पास क्या क्या आइटम है। फिर मैंने कहा इतने से इतने साल के बच्चे के बीच के दिखाइए। फिर मैंने कहा उससे कि अच्छा इस तरह के प्रोडक्ट्स मुझे दिखाइए, जिसमें जैसे इस तरह का टॉय, इस तरह का टॉय दिखाइए, या इस तरह का कोई टेडी बियर टाइप का दिखाइए। तो उसने मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाए। उनमें वो प्रोडक्ट भी थे जो मैंने ऑनलाइन सर्च कर लिए थे। मैंने टैली करने के लिए कि वो रेट क्या था और ये रेट क्या है, उससे टैली किया, तो उसने मुझे रेट बताया। अब मैंने उस रेट पे उसको बार्गेन भी कर लिया। मैंने कहा मुझे पता था कि एक्चुअल कॉस्ट जो ऑनलाइन ऑफर हो रही थी, जब मैंने बार्गेन किया तो उसने और कम प्राइस मुझे ऑफर किया। तो मुझे जो ऑनलाइन मिल रहा था जो प्राइस, उससे भी कम प्राइस में एक्चुअली वो मिल गया। तो इस तरह से मैं कस्टमाइज करके उस प्रोडक्ट को ला सका। और मुझे ये भी नहीं कि वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं इतने प्रोडक्ट सोर्स सर्च करके जा चुका था। तो मुझे वहां पे जाके कंफ्यूज नहीं होना था, मुझे पता था कि ये प्रोडक्ट्स है। तो मैंने जस्ट एक उससे पूछा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उसने मुझे बताए। मैंने तुरंत उनमें सॉर्ट आउट कर लिया, सेग्रीगेट कर लिया कि हाँ इस तरह का प्रोडक्ट मुझे चाहिए, इस तरह के प्रोडक्ट में आपके पास क्या क्या अलग वैरायटी है, और उसके अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करके मैंने परचेज कर लिया। तो ये देखिए इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ई कॉमर्स का, जो हम ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो इवन अगर आप ऑफलाइन भी कर रहे हैं तब भी देखिए आपका ऑनलाइन सिस्टम आपको काफी हेल्प करता है, आपको बहुत बड़ी हेडेक से बचाता है। तो ये इसने पूरे सिस्टम को ही हमारे रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। हमारा सिस्टम काफी इंप्रूव हो गया है पहले से। जो हम पहले जिस तरीके से ई कॉमर्स करते थे, अब उससे बहुत डिफरेंट तरीके से हम ई कॉमर्स कमर्शियल ये पर्पज के लिए अपने प्रोडक्ट्स परचेज और सेल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, इसका लेक्चर एंजॉय किया स्टूडेंट्स? ठीक है ना, समझ में आया? आसान टॉपिक था और इंटरेस्टिंग भी था, जैसा आपने देखा। ठीक। और अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी अगर ऐसे कोई ई कॉमर्स एक्टिविटी करेंगे तो ये सब गाइडलाइंस जो मैंने दी हैं आपको और जो टिप्स दी हैं इनका यूज करेंगे। क्यों जीशान? ठीक है ना, तो ये आपको आपके डे टू डे लाइफ में, डे टू डे ऑनलाइन परचेजिंग और सेलिंग में भी हेल्प करेगा। ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं सी टू सी कॉमर्स का भी एग्जांपल ले रहा था कि आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए डालते हैं, बाइक वगैरह, तो कई बार हमें ये भी रहता है कि कस्टमर कांटेक्ट करेगा या नहीं, मैंने ज्यादा प्राइस तो नहीं डाल दिया, कम प्राइस तो नहीं डाल दिया। तो उसके लिए स्टार्टिंग के लिए पहले एक प्राइस अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता हो थोड़ा मार्केट से टैली करके डाल दीजिए। अगर उस पर कोई कांटेक्ट नहीं करता तो ग्रेजुअली, जब आपको लगा कि 1 2 साल तक कोई किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, थोड़ा कम करके देख लीजिए। ठीक है, और देखिए उस पर बहुत से प्रोडक्ट पहले से पड़े होते हैं, उनमें देखिए कि उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर ईयर में उस ब्रांड में कौन लोग कितने प्राइस ऑफर कर रहे हैं। फिर आप एक ऐसी रेंज सेट करिए जो आपके प्रोडक्ट और जो आपकी करंट हालत है उसकी प्रोडक्ट बाइक की करंट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सुटेबल है। तो आपको देखिए डेफिनेटली कोई ना कोई कस्टमर कांटेक्ट करेगा और आप उसको परचेज या सेल कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं आजकल बहुत सारी साइट्स हैं, cars.com, जिसपे आता है कि कार्स बेचिए अपनी, है ना। तो ये बहुत तरह की साइट्स हैं, ई कॉमर्स साइट जो आजकल अवेलेबल हैं। ये सारी सी टू सी कॉमर्स वेबसाइट है जिन पे आप अपनी बाइंग और सेलिंग करते हैं। ठीक है ना। तो आपको, आप लोगों ने एंजॉय किया सेशन आज का? अब मैं जरा अटेंडेंस ले लूँ। ठीक है, एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ। पेन कहाँ है? वेट करिए जरा, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। चलिए। हाँ, तो कौन है? प्रमोद कुमार। और ये कौन है? मिस्टर कैलाश। फिर ये कौन है? अक्षिता वाशने। मोहित कुमार। कोमल चतुर्वेदी। कृपाल सिंह। शाजिब आदिल। मोहम्मद हाशिम। ठीक है। ठीक है, सबके अटेंडेंस। मोहम्मद जीशान। ठीक है, मैं एक बार फिर से। हाँ, बताइए क्या पूछ रहे हैं? मैं एक बार फिर से नाम कॉल कर रहा हूँ जो लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है, सुन लीजिए एक बार।
मोहम्मद जीशान, शाजिब आदिल, शालिनी सारस्वत, प्रमोद कुमार, अक्षता वार्ष्णेय, कैलाश कुमार, मोहित कुमार, कोमल चतुर्वेदी, कृपाल सिंह और मोहम्मद हाशिम। और बता दीजिएगा और भी अपने साथ में और बाकी फ्रेंड्स को कि क्लास करते रहिए, पूरा अटेंड करिए लेक्चर। और जहां तक है फिर ये यूनिट के बाद भी फिर हम एक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। और आप लोगों को रिजल्ट आपके पता चली गए हैं, पहले टेस्ट के वैलिडेट कर दिए हैं, उसी पे पोस्ट कर दिए हैं मैंने, ठीक है ना। आगे भी जो टेस्ट मैं कंडक्ट कराऊंगा तो इसी तरीके से कंडक्ट कराऊंगा, टीचमेंट ऐप के थ्रू, ठीक है। तो उस पर वैलिडेट भी आपका साथ के साथ ही हो जाता है, ये फायदा रहेगा। कोशिश करेंगे एक दो बीच में क्विज भी कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाए थोड़े से, ठीक है। और देखिए आप लोगों की क्विज आ रही होंगी, आप लोग अकाउंट चेक कर रहे हैं अपने क्विज के लिए, चेक कर रहे हैं, दो कर ली हैं, ठीक है। और उनको व्यू लगातार चेक करते रहिएगा, क्विज उसमें लगातार आती रहती हैं। अभी दो क्विज आ चुकी हैं, अभी और भी क्विज आएंगी, आप रेगुलर बेसिस पे उसको चेक करते रहिएगा। हम लोग बार बार कहते हैं, पिछले साल भी आपने एआई का जब किया होगा कोर्स, इसी तरह का जो कोर्स था एआई, तो उसमें क्विज आती रहती थी। पिछली बार तो खैर लेट आई थी क्विज, लेकिन इस बार आपके टाइमली आती जा रही हैं। तो आप उससे टच में रहिए, और जैसे ही क्विज आए उसको तुरंत साथ के साथ करते रहिए, ठीक है। क्विज करते रहिए, दो क्विज आ चुकी हैं आप बता रहे हैं, और भी क्विज उसमें करते रहिए। हाँ बताइए, कोई कुछ पूछ रहे हैं आशिम? स्टोरेज लाइफ टाइम देखिए, जब तक आपका वो अकाउंट रहता है गूगल का, तब तक वो रहेगी। और गूगल का अकाउंट आप जानते हैं लाइफ टाइम ही रहता है आपका, तो स्टोरेज लाइफ टाइम रहती है आपकी। और सबसे बड़ा फायदा ही ये है उसका, उस गूगल क्लाउड का, कि उस पर अनलिमिटेड स्टोरेज रहती है, और अनलिमिटेड टाइम के लिए आप कितने भी समय के लिए रखिए, वो गूगल ड्राइव पे सेव रहती है आपकी। तो आपका हमेशा के लिए अकाउंट बन, जैसे आपका जो भी अकाउंट होगा गूगल का अकाउंट, उसके थ्रू गूगल ड्राइव लिंक होगी, और उस गूगल ड्राइव पे आप जितना समय तक चाहें उस डेटा को रख सकते हैं। तो आपको बेकार में पेन ड्राइव और एक्सटर्नल एक्सपेंसिव जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आती है, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इजीली क्लाउड पे डेटा को सेव कर सकते हैं। तो आपको उतनी महंगी डिवाइस, उतनी महंगे पेन ड्राइव लेने की जरूरत ही नहीं है, यूएसबी ड्राइव वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इजीली क्लाउड पे डेटा अपने अकाउंट में सेव कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए। और दूसरा फायदा सबसे बड़ा, अगर आपका मान लीजिए सिस्टम फेल भी हो जाए, कंप्यूटर सिस्टम में कोई एरर आ जाए, तो आप उस स्टोरेज से उसका बैकअप भी ले सकते हैं, ठीक है। ये रहता है। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं, आज का सेशन ओवर हो गया।